Hello everyone. Before starting the video, I want to say sorry because I have skipped the behaviorism perspective part in the previous video. So first of all, I will complete that part and then we will move to part C of this chapter. Behaviorism. In 1910, John B. Watson, he rejected all the concepts of mind. उनका ये मानना था कि जिस चीज़ को मैं देख नहीं सकता, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में मुझे पता नहीं, जिसको मैं ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं उस पे रिसर्च क्यों करूं? According to him, psychology is a study of behavior. Now, as I told you, behavior is actually the association of stimulus and response. So, if the stimulus is goal achievement, then response is working hard towards it. It is as simple as that. So, let's start from part C of this chapter. The topic is themes of research and application. Theme 1 is psychology, like other sciences, attempts to develop principles of behavior and mental process. So यहाँ पे फोकस किया गया है कि हम behavior और mental process को कैसे जान सके, उनके रोल के बारे में, उनके implication के बारे में. So here the psychologist tries to conduct experiment in controlled environment. From controlled environment I mean where the experimenter has the power to manipulate the variables. Example, like in a psychological laboratory. The conclusions that are drawn from it, they are supported by various data and they are universally applicable. For example, there is a psychological fact that human beings and animals, they face emotional disruption when there is any hindrance in satisfaction of their impulses. यहाँ पे कुछ बेसिक साइकोलॉजी के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, लाइक योर एबनॉर्मल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड सो ऑन. So second theme is human behavior is the function of attributes of the person and the environment. So Levin ने यहाँ पे एक equation बताया that B equal to F into P into E. That means behavior is the product of the person and his or her environment. इसका मतलब ये है that there is an influence of human environment interaction on their behavior. साइकोलॉजी को थोड़ा टाइम लगा ये जानने में दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम. दो लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते. दैट्स वाई देयर इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड एज डिफरेंशियल साइकोलॉजी विच फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एंड साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड and get the explanation of psychological phenomena based upon the human environment interaction. So theme 3 is human behavior is caused. That means human behavior जो है वो बहुत ज़्यादा complex है and there can't be only one cause or reason for any behavior. There are multiple causes. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टेटमेंट है दैट X इज़ कॉजिंग Y, दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये सोच सकते हो कि आपका कोई क्लास में दोस्त है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, वो हमेशा कंपटीशन में फ़र्स्ट आता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, उसको लिरिक्स सही से याद नहीं आए, उसके ताल सही से नहीं बैठ रहे थे. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, मेहनत नहीं किया इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज यू सी. देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज़. क्या पता उसका तबीयत ख़राब हो, क्या पता उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो, क्या पता देयर इज़ रिलेशनशिप इश्यूज़ एंड सो ऑन. सो देयर कांट बी ओनली वन रीज़न फॉर एनी बिहेवियर. Theme 4 is understanding of human behavior is culturally constructed.
सो यहाँ पे द साइकोलॉजिस्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दे वर क्रिटिकल ऑफ यूरो अमेरिकन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। उनका ये मानना था कि हम ये सारे प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली एप्लीकेबल का दर्जा क्यों दे रहे हैं, जबकि दे आर नॉट एट ऑल रेलिवेंट इन डिफरेंट कल्चरल सेटिंग। एक यूरो अमेरिकन के थ्योरीज एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। सेम चीज़ फेमिनिस्ट ने बोला कि जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स आप बना रहे हो दे आर हाईली मेल डोमिनेटेड। यहाँ पे वुमेन्स पर्सपेक्टिव, उनके एक्सपीरियंस के बारे में क्यों नहीं लिखा गया है, वाई यू आर इग्नोरिंग अस। थीम 5 इज़ human behavior can be controlled and modified through application of psychological principles। सो इसका मतलब ये है कि हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ और प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग को 3 एडवांटेज मिल सकता है। पहला है दैट इट विल हेल्प टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी। Second, it will help to bring the subject closer to the life of people in general. And third, it will help to popularize psychology as a subject. तो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हो, सब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इफ देयर इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एक बच्चा है जो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता, तो उसकी मम्मा को बताया गया कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कीजिए। जब भी वो बच्चा अपना होमवर्क करेगा, आप उसके लिए उसका फेवरेट डिश बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फेवरेट डिश है उसका चिली मशरूम। तो धीरे धीरे बच्चे को भी पता चल गया कि जब भी वो सही तरीके से अपना होमवर्क करता है तब तक उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, और जब वो नहीं करता उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। सो इसी तरीके से वो अपना ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बदलता है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। The next topic is basic versus applied psychology. So in basic psychology, the focus is on the psychological theories and principles, whereas in applied psychology, the focus is on applications of those theories and principles. So the basic psychology is research oriented and applied psychology is application oriented. Basic psychology का example it is experimental psychology, social psychology, organizational psychology, whereas applied psychology का example is applied experimental psychology, applied social psychology and so on. But these activities are इंटररिलेटेड एंड दे आर म्यूचुअली रीइंफोर्स्ड। मतलब अगर बेसिक साइकोलॉजी नहीं होगा, अप्लाई करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं बचेगा, एंड इफ़ अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं रहता तो बेसिक साइकोलॉजी के थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को हम रिफाइन नहीं कर सकते। So next part is your psychology and other disciplines. So we are going to learn about the multidisciplinary approach of psychology. पहला है philosophy. So as I have told you कि psychology का parent subject है philosophy. 19th सेंचुरी में उनका ज़्यादातर फोकस था इमोशन, ह्यूमन मोटिवेशन और नेचर ऑफ माइंड के बारे में जानने का। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद विल्हेम वुंट और दूसरे साइकोलॉजिस्ट के कारण ज़्यादा यूज़ होने लगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इस फिलॉसफी के अंडर ही है एपिस्टेमोलॉजी, जहाँ पे हम लोग जान सकते हैं द मेथड ऑफ नॉलेज, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरीफाइड बिलीफ एंड ओपिनियंस। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ philosophy to psychology like methods of knowing and domains of human nature.
सो नेक्स्ट है मेडिसिन। यहाँ पे साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है अपने पेशेंट्स को कि कैसे वो हेल्थ हैजार्डियस हैबिट से दूर रहें और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है उसको वो कैसे फॉलो करें। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर चाहता है कि उसका जो पेशेंट है वो बोथ साइकोलॉजिकली और फिज़िकली स्टेबल रहे। एंड कई बार पोस्ट ऑपरेटिव केयर के डॉक्टर्स को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोविड सिचुएशन देख सकते हो कि जहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं कि उनका जो प्रोफेशन है कि दूसरे लोगों का जान बचा पाना वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे काउंसलिंग उनको एक इमोशनल सपोर्ट दे सकता है दैट दिस शैल टू पास, ये बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा, लेकिन आप हार मत मानिए। So next is political science, economics and sociology. In economics, psychology helps in understanding the economic behavior of the people, especially the consumer behavior, the decision making process and various methods of saving the money. So Nobel Prize winners like Simon Schillings and Kahneman, they have worked on such issues. Now when we come to political science, definitely psychology helps in understanding the concept of leadership, the nature of political conflicts and its resolution and so on. In sociology, psychology helps in understanding and explaining behavior of individuals in different socio-cultural context. So next is computer science. सो हमेशा से ही कंप्यूटर साइंटिस्ट का एम रहा है कि वो ऐसे कंप्यूटर्स बना सके जो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट कर सके, जो इंटेलिजेंट हो, जो सेंस कर सके, जो फील कर सके। सो इफ़ दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेटली इट कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। Next is law and criminology. So lawyer or criminologist, when they are having a question answer session with any accused, victim or eyewitness, definitely the knowledge of psychology can help in analyzing questions like how accurately the person remembers the incident, like your street fight or murder, etc. and what are the things that are influencing their report. So in this manner they can help the legal system of the country. So next is mass communication. Definitely no one can deny the fact that communication plays an important role in human life, and in psychology you learn about thinking, attitude, prejudice, then emotions, etc. and it helps to have a better and effective communications with others. सो अगर एक जर्नलिस्ट को अपने रीडर्स के इंटरेस्ट के बारे में पता है, उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है, दैन डेफिनेटली उसकी बातें बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर होगी उसके व्यूअर्स को, उसके रीडर्स को, जो उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स. Definitely we all know that music plays an important role in increasing and improving our performance, and even recently मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ी थी जहाँ पे लिखा गया था कि अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक या एम्बिवेंट म्यूज़िक इस्तेमाल करते हो पढ़ने के टाइम पे, then it can actually help you to increase your concentration. सो म्यूज़िक एंड इमोशंस दे आर इंटररिलेटेड. तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और वहाँ पे कोई मोटिवेशनल म्यूज़िक लग जाए, दैन डेफिनेटली बोथ आर ऑन द सेम लाइन. एंड द सेम केस इज़ विद जब आप लो फील कर रहे हो और वहाँ पे कोई दुखी वाला गाना चल जाए. अभी नया ही म्यूज़िक थेरेपी बना है जिसमें आप म्यूज़िक का इस्तेमाल करते लोगों को हील करते हो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ताकि वो अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर सकें. लेकिन अभी तक उसके एफिकेसी के बारे में सही तरीके से पता नहीं चल सका है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट एट वर्क. सो पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था दैट दे डील विथ पीपल हैविंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और डीलिंग विथ स्ट्रेस, एंजाइटी, सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स.
They use various psychological tests like interview, case study, observation, self-report, and so on while treatment of their client. And the job opportunities here are quite attractive. उसके बाद आता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. नाउ दे डील विथ पीपल हैविंग मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम विच आर लेस सीरियस. तो अगर एक इंसान का रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, पीयर इश्यूज़ हो, एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज़ हो, फैमिली इशू हो, तो वहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प. दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मिंग वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स. दे हेल्प यू इन मेकिंग choices at difficult situations. So they also work in school, in university, mental health centers, institutions, organizations. So next is community psychologist. Here the focus is on improving the mental health of the community. They work with state government, private organizations and different institutions. एंड उनका यही फोकस रहता है कि वो कैसे फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम जो होता है एक कम्युनिटी का, उसको कैसे सॉल्व कर सकें. एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है. सो अगर आप संजू मूवी देखे होंगे तो वहाँ पे संजय दत्त जब ड्रग रिहैबिलिटेशन को जाते हैं तो वहाँ पे वो सिर्फ अकेले नहीं होते, बहुत मतलब दूसरे भी लोग होते हैं जिनके साथ मिलके उनको ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता है. एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन. सो नेक्स्ट इज स्कूल साइकोलॉजिस्ट. दे डेफिनेटली वर्क इन एजुकेशनल सेटिंग. सो कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उसको एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों के ऊपर, एंड कुछ साइकोलॉजिस्ट वही टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज करके जो गलतियाँ होती हैं उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई करते हैं. So they also have a contribution in formulating different school policies, and उनकी ही मदद से एक प्रॉपर रिलेशनशिप बन पाता है पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच. and they also help in academic progress of the student. So last is organizational psychologist. So here they try to improve the relationship of the executives, the employee and employers. They provide different consultancy services. They help to design different skill enhancement programs to upgrade the skills of the employee and the employers. Some are स्पेशलाइज्ड इन HRD और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड कुछ लोग मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे स्पेशलाइज्ड होते हैं. सो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. हम लोग साइकोलॉजी क्यों पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा होगा. तो आप 2 सेकंड लीजिए, अपने प्रेजेंट में जितने भी प्रॉब्लम हैं उनके बारे में सोचिए और एनालाइज़ कीजिए कि उनके रूट कॉजेज़ क्या हैं. तब आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर जो रूट कॉजेज़ हैं वो आपके अनहेल्दी थिंकिंग, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से है. तो अगर आप साइकोलॉजी की थ्योरीज़ और उसके प्रिंसिपल को सही तरीके से समझ गए तो ये सारे प्रॉब्लम्स को वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है. आपको पता ही होगा दैट साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली दे प्ले एन एक्टिव रोल इन इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ. एग्जाम्पल के तौर पर कोविड सिचुएशन में NIHANS, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, बैंगलोर में उन्होंने इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस किया था. एंड सेम इन अदर प्लेसेस लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एक्सेट्रा. तो अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ और आप उसके प्रिंसिपल सही तरीके से जान गए तब आप अपने आप को और दूसरों को और अच्छी तरीके से आप जान सकते हो. इट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर मेमोरी, योर study habits, your thinking, your creativity, your problem solving abilities. In short, it will help you to improve your life. So with this, I want to end this video. If you like my explanation, please subscribe to my channel, hit the like button,
comment down below, and I will attach the handwritten notes in the description. Thank you and have a great day.